going to start with this chapter। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਸੈਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਪ ਟੂ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ 2 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, 3 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, 5 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, 8 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, 4 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਏ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਅ ਨੰਬਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਔਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਦੇਖੋ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ d greater than 0 और equal to 0, ठीक है। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕ ਰੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਰੂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਨ d is less than 0, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ -1, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਗਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਿਗਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ and that bigger system is called a complex number। तो ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਲੇਕਿਨ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ d ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਰੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਐਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਨੀ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਫॉर्म a plus ib, smaller I है, where a and b are real numbers, these are set of real numbers, and I is equal to -1 under the root, and its name is iota, IOTA। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ iota, ਕੱਲਾ i ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, a plus iota b ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। iota is a small quantity having value -1 under the root। ਆਹ ਵਾਲਾ -1 under the root ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। so we are defining an under root of a negative value that is denoted by iota, okay। so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ is called a complex number। अगर आप एग्जाम्पल लिए 4 plus iota 5, 2 minus 3 iota, 5 iota only, तो 5 iota ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 0 plus 5 iota। ਕੱਲੇ 5 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕੱਲੇ ਆਪਾਂ 9 ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕੇਲੇ
9 ਨੂੰ अगर लिखना होवे तो किवें लिखांगे 9 प्लस आयोटा 0 या 0 आयोटा। हुण ਇਹਦਾ एग्जाम्पल ने किसी भी कॉम्पलैक्स नंबर ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਨੰਬਰ z a plus iota b, so z is called a complex number। for this complex number ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ complex number ਨੂੰ z ਨਾਲ। a is called the real part of complex number z and is denoted by REZ। यानी कि आ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ z, ਐਂਡ b ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ z and is denoted by IMZ। this is b। देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का पता किवें लगेगा, सिंपल, जिहदे नाल आयोटा लग्या होया है वो इमेजिनरी पार्ट है, जिहदे नाल आयोटा नहीं लग्या होया वो रियल पार्ट है। जिवें कि इस एग्जांपल दे विच अगर मैं इस कॉम्पलैक्स नंबर का रियल पार्ट कढना होवे पता लग ही गया होगा तुहानूं 4 प्लस आयोटा 5 पैदा मैं बाहर लिखता RE, दैट ये पूरा अपने आप अंडरस्टैंड नहीं गया। हुण RE ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜੋਗੇ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਰੀਅਲ ਪਾर्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो व्हाट इज दैट 4। और अगर मैं बाहर लिख देना IM 4 प्लस आयोटा 5 तो वो कितना है 5। हुण कई बच्चे इत्थे गलती करते हैं, जो आप रीयल पार्ट लिखते हैं या पूछते हैं तो उदों तो वो ठीक कह देंगे ने दैट इज 4, बट वैन आई एम आस्किंग अबाउट इमेजनरी पार्ट तो वो कला 5 नहीं लिखते, वो आयोटा 5 लिख देंगे। तो इत्थे आयोटा 5 नहीं लिखना तुसी। जे मैं पूछा इत्थे कि इमेजनरी पार्ट कितना है तो बच्चे दसेंगे आयोटा 5, कई गलती कर देंगे। नो, आयोटा दा सिर्फ इन्ना रोल है कि आपां नूं वो डिफरेंशिएट कर दिंदा है कि रियल कौन है और इमेजनरी कौन है। अदरवाइज हुण मैं तैनूं ऊपर की दस्सिया है कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों ही रियल नंबर्स ने। तो जिहड़ा कॉम्पलैक्स नंबर है दैट इज अ कंबीनेशन ऑफ टू रियल नंबर्स। बस डिफरेंशिएट करने दे लई आपां एक इत्थे एक इमेजनरी वैल्यू लई है, इमेजनरी, दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल, दैट्स व्हाई इट्स कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई इट्स इमेजनरी। वी आर इमेजिन दिस कि दैट iota is the under root of -1, so it's not a real value। okay, ਤਾਂ iota ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ iota ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, iota ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ two complex numbers, मान लो दो complex numbers ने z1 z2, they are equal to each other, that means a1 b1 a1 iota b1 a2 plus iota b2। दो complex number कदों equal होणगे जदों उन्हां दे real parts real part दे बराबर होण और imaginary part दे बराबर होवे, then those two complex numbers are equal। okay, जिवें आपां इत्थे रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर रहे सी कि तां अगर मैं तुहानूं आ वाला क्वेश्चन देवां, जिवें एक तां आ हो गया एक आ हो गया, हुण इहदे विच अगर तुसीं रियल पार्ट लभना होवे, रियल पार्ट ऑफ 5 आयोटा तां कितना है इहदे विच, आयोटा तां आपां दस रिहा है कि इहदे विच सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है, तां रियल पार्ट कितना होएगा 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना होएगा इहदे विच ओनली 5। और जिवें कल्ला 9 है इस कॉम्प्लैक्स नंबर दे विच अगर आप रियल पार्ट लभना होवे तो 9 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है 0, क्योंकि वो कल्ला ही रियल है। हुण मैं तुहानूं की कहा सीगा कि कॉम्प्लैक्स नंबर इज अ बिगर कॉन्सेप्ट देन ऑल द रियल नंबर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट। ठीक है, दिस मीन्स दैट एनी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लैक्स नंबर बाय जस्ट अटैचिंग 0 आयोटा, तो ये कॉम्प्लैक्स नंबर बन जाएगा, राइट।
ਹੁਣ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਮੇਜਨਰੀ ਦਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ 4x plus iota 3x minus y is equal to 3 plus iota minus 6 where x and y are real numbers, then find the value of x and y। so ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੂੰ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ you can find out very easily the value of x is 3 by 4, put here value of x 3 into 3 by 4 minus y is equal to minus 6। so after solving the value of y is 33 by 4। so ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x और y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। now let's moving forwards algebra of complex numbers। algebra of complex number ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਲਜਬਰਾ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ। addition of two complex numbers। let we have two complex numbers, first is given by a1 iota b1 and second complex number is given by a2 plus iota b2, then their addition is given by z1 plus z2, real part will be added in the real part, so ਇਹਨਾਂ ਦੇ corresponding real part add ਹੋ ਜਾਣਗੇ, iota common और corresponding imaginary parts add ਹੋ ਜਾਣਗੇ। this is the addition। for example ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 4 plus 3 plus 4 3 plus iota 5 and second is 7 minus 3 iota, and ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ 3 plus 7 10 iota common 5 प्लस माइनस 3, ठीक है ऐड कर रहे हैं तो 5 विच माइनस 3 ऐड कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा। सो दिस इज आवर एडिशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਵਰਡਿੰਗਸ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। properties of addition of complex numbers, ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਪਿਕ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਰ ਲਾਅ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਲਾਅ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, दो कंप्लेक्स नंबर्स ने, आ भी कंप्लेक्स नंबर है, इन्होंने जोड़ के की आया है, ए भी एक कंप्लेक्स नंबर आया है। सो दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो कंप्लेक्स नंबर्स ने उन्होंने जोड़िया जाए, क्योंकि आप एडिशन की प्रॉपर्टी कर रहे हैं ना। यही प्रॉपर्टीज अपनियां जो आप हुण मल्टीप्लीकेशन करांगे ना, तो दो कंप्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन भी एक कंप्लेक्स नंबर ही होंदा है। सो इहदे क्लोजर प्रॉपर्टी की बनती है कि अगर Z1 Z2 कंप्लेक्स नंबर्स ने तो Z1 plus Z2 will also be a complex number। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट। सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का की मतलब है कि अगर दो कंप्लैक्स नंबर्स हैगे ने अपने को, उन्होंने चाहे तुसी पहले विच दूजा जोड़ दो या दूजे विच पहला जोड़ दो, योर आंसर विल बी सेम। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव, अगर अपने को 3 कंप्लैक्स नंबर ने लॉ और प्रॉपर्टी, ठीक है,
Z1 प्लस Z2 पहले दो जोड़ते जो आंसर आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तीसरा जोड़ता या पहले तुसी Z2 प्लस Z3 जोड़ लो जो आंसर आएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Z1 जोड़ लो या Z1 ਦੇ ਵਿੱਚ Z2 प्लस Z3 ਦਾ जो जोड़ आया वो जोड़ के देखो आंसर विल बी सेम। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की मतलब है कि मैं एस कॉम्पलैक्स नंबर दे विच क्या जोड़ा, केड़ा कॉम्पलैक्स नंबर जोड़ा कि ये जो जिहदे विच जोड़िया सीगा एज इट इज वापस आ जाए, एज इट इज सेम आंसर आ जाए, तो फिर की जोड़ांगा? एक जीरो कॉम्पलैक्स नंबर ही जोड़ांगा ना। दैट मीन्स जीरो प्लस आयोटा जीरो, दिस इज कॉल्ड अ जीरो कॉम्पलैक्स नंबर, राइट। यानी कि कहने का की मतलब है ए प्लस आयोटा बी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक कॉम्पलैक्स नंबर जोड़ रहा तो एज इट इज आ जाएगा ना वापस जोड़न तो बाद ए प्लस आयोटा बी। सो दिस इज कॉल्ड जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा। ਇਹਦਾ नाम की है? ये तो है जीरो कॉम्पलैक्स नंबर और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आप ਉਹਦੇ पार्ट्स ने आ रियल नंबर है आ भी रियल नंबर है। तो एस कॉम्पलैक्स नंबर का जेड़ा कि कॉम्पलैक्स नंबर जीरो है ਉਹਦਾ रियल पार्ट की है जीरो और इमेजिनरी पार्ट की है वो भी जीरो है ना। आ वाले दो रियल नंबर्स ने और आ जीरो की डिनोट कर रहे हैं, दिस जीरो डिनोट द कॉम्पलैक्स नंबर। तो एस जीरो नु फिर आपां की कहांगे? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन दे विच एडिटिव आइडेंटिटी की है? जीरो, जीरो कॉम्पलैक्स नंबर इन केस ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर। फिफ्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स होने का की मतलब निकला, एक कॉम्पलैक्स नंबर है, उस कॉम्पलैक्स नंबर दे विच मैं केड़ा कॉम्पलैक्स नंबर जोड़ा कि मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। जोड़न की गल कर रहे हैं, ऐसा मतलब है मेरे को ओदा जो साइन चेंज करके मैंने जोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ जेड इज ए प्लस आयोटा बी तो माइनस जेड की आएगा माइनस ए आयोटा माइनस बी, राइट। और इन्होंने दोनों जोड़ांगे तो ए माइनस ए जीरो, आयोटा होवे ना होवे बी माइनस बी इज जीरो, तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो जिहड़ा आ बचिया जो आपां जोड़िया सीगा दिस इज कॉल्ड माइनस जेड इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्पलैक्स नंबर जेड। ठीक है। सो ये अपने को प्रॉपर्टी सीखिया। हुण है डिफरेंस, जिवें आपां हुणे एडिशन रखिया है उसी तरह ही डिफरेंस देखो क्या है। सिंपल, इत्थे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, इत्थे माइनस साइन आ जाएगा। हियर वी विल हैव प्लस साइन, इत्थे आ जाएगा माइनस, इस जगह पे भी माइनस, एंड वी आर doing the difference of two complex numbers. So we have these two complex numbers. Z1 minus Z2 is given by A1 minus A2. रियल पार्ट विचों रियल पार्ट माइनस हो गया, आ प्लस साइन होवेगा होवे और आयोटा कॉमन लिया और इमेजिनरी पार्ट विचों इमेजिनरी पार्ट माइनस हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्पलैक्स नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आही एग्जाम्पल ले लेने हैं। दो कॉम्पलैक्स नंबर्स नू आपां माइनस कर रहे हैं तो तीन विचों 7 माइनस होएगा तो कितना आएगा? फिर 3 माइनस 7 माइनस 4 और 5 विचों -3 माइनस होएगा तो 5 प्लस 3 आ जाएगा 8। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्पलैक्स नंबर्स। बोलो समझ आ गया होना? सो ये तुहानूं मैं दस्सिया कि इहदे उपर अपने किहड़े फंक्शनस लग रहे हैं, अलजबरा की है इन्हां दा। हुण आ जाओ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्पलैक्स नंबर्स। जिवें आपां एडिशन किया, रियल विच रियल जुड़ गया, इमेजिनरी विच इमेजिनरी जुड़ गया। मल्टीप्लीकेशन तुसीं जो छोटी क्लासेस में सीख के आए हो, दो ब्रैकेट्स विच अगर दो टर्म्स ने, दो टर्म्स ही ने ना, फर्स्ट टर्म है सैकेंड टर्म है, हाँ, ये फर्स्ट टर्म है वो रियल पार्ट है, जो सैकेंड टर्म है वो आयोटा लगन करके
आयोटा इमेजिनरी पार्ट हो गया, राइट। तो दो टर्म्स ਨੂੰ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ। so multiplication of two complex numbers, suppose we have two complex numbers a plus iota b and second complex number is c plus iota d। ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੀ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, z1 into z2। so what we will do, फस्ट ऑफ ऑल आप फस्ट टर्म लवांगे और दोनों नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए सी प्लस आयोटा ए डी। हुण आयोटा ए बी लवो और इनू ना मल्टीप्लाई करो, आयोटा बी सी और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। हुण इत्थे आपां की लिया है, आयोटा इज -1 अंडर द रूट, इनू तुसीं एवें लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जिथे तुहानूं आयोटा स्क्वायर मिल जाए उत्थे तुसीं -1 भर दिओ, तो इत्थे आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो उत्थे आपां -1 भरता और बी नू डी नाल मल्टीप्लाई करता। बोलो आ गल समझ आ गई। वी आर यूजिंग द फार्मूला आयोटा स्क्वायर इज -1। हुण रियल रियल पार्ट इकट्ठे कर लो, रियल नंबर्स ए सी बी डी, और जिहड़े आयोटा वाले ने उन्होंने आपां इकट्ठा कर लेने बाय टेकिंग द आयोटा कॉमन, ए डी प्लस बी सी। तो z1 z2 की आ गया अपने को, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्पलैक्स नंबर्स। इन द सिमिलर लाइन्स तुसीं अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप सुपोज करते हैं 3 प्लस आयोटा 4 और z2 है 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इन्हें दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं z1 z2। तो आ 3, ठीक है, और आयोटा नू आयोटा ने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो -4। तो आ हो गया जो रियल पार्ट जिहदे नाल आयोटा नहीं है, ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन काढ़ लैंदे आ, 3 नू आयोटा नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 3 आ गया, और माइनस आयोटा 4 नू 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो +4 आ गया। तो टोटल आंसर कितना आया, -1 + 7 आयोटा। हुण आयोटा नू किधर लिखना है, कई बार ये भी चांस हो जाता है, जिवें आयोटा बी लिखिया है या इत्थे मैं लिखता 7 आयोटा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आयोटा ने तो सिर्फ आपां नू इन्ना दसना है कि इमेजिनरी पार्ट केड़ा है। आयोटा कित्थे लिखिया है, राइट च लिखिया है, लैफ्ट च लिखिया है, वो मैटर नहीं करता। जिवें इत्थे 3 प्लस आयोटा 4 है, इत्थे -1 + 7 आयोटा है, तो तुसीं इहनूं एवें भी लिख सकते हो, तां भी कोई गलती नहीं है। -1 + आयोटा 7 या 7 आयोटा, जिवें मर्जी लिख सकते हो। तो मैं तुहानूं दस्सिया कि मल्टीप्लीकेशन किहड़ी हुंदी है। हुण मल्टीप्लीकेशन दी प्रॉपर्टीज़ की ने, बिल्कुल वही जो आपां एडिशनस विच करके गए हैं। फस्ट है अपने कोल क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है z1 z2 विल आल्सो, दो कॉम्पलैक्स नंबर्स दा अगर आप मल्टीप्लीकेशन करिए, विल आल्सो बी अ कॉम्पलैक्स नंबर। दो कॉम्पलैक्स नंबर मल्टीप्लाई करिए तो एक कॉम्पलैक्स नंबर आ जाता है। सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1, मतलब पहले z1 मल्टीप्लाई करो z2 नाल, इनू फर्स्ट रखो सेकंड रखो, या सेकंड पहला फैक्टर बना लो, दूसरा z1 का रिजल्ट सेम आएगा। एसोसीएटिविटी का मतलब की है, बिल्कुल जिवें आपां मल्टीप्लीकेशन की अपना एडिशन किया सीगा, है ना, z1 + z2 किया सी, इत्थे z1 z2 और z3 बाद विच कर लो मल्टीप्लीकेशन, या z1 नू बाहर ले लो और z2 z3 की मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 3 मल्टीप्लीकेशन जो आप करांगे रिजल्ट सेम आएगा। फोर्थ की है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। हुण मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बारे समझना है, इत्थे मैं तुहानूं ना इहदी जो आप फीचर्स कर रहे हैं, एडिशनस विच भी जो आप फीचर्स कीते सीगे और मल्टीप्लीकेशन भी जो आप फीचर्स कर रहे हैं, ਉਹਦੀ मैं तुहानूं इत्थे पिक भी पा दांगा, जिहड़े भी अपने कोल क्लोजर लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसीएटिव लॉ है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है, सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। हुण मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की होंदी है, देखो एडिटिव आइडेंटिटी की सीगी कि किसी कॉम्पलैक्स नंबर दे विच की जोड़िया जाए कि वो कॉम्पलैक्स नंबर ओरिजिनली वापस एज इट इज़ आ जाए, उस पर कोई फर्क ना पवे। तो ये भी वही है कि किसी कॉम्पलैक्स नंबर के नाल मैं किहड़ा कॉम्पलैक्स नंबर मल्टीप्लाई करा कि ये एज इट इज़ आ जाए, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड दैट इज 1। और 1 नू किवें लिखांगे, 1 + 0 आयोटा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि इनू तुसी इत्थे तो हो गया 1, दिस इज कॉम्पलैक्स नंबर,
और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੀਅਲ ਪਾर्ट है और 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾर्ट है। सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z। फिफ्थ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की होंदा है? z ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ मैं किहड़े ਕੰਪਲੈਕਸ नंबर ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ कि मेरे को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, 1 + 0 आयोटा आ जाए। दिस मीन्स दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 बाय z। z नू 1 बाय z ना मल्टीप्लाई करांगा तो मेरे को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। एंड 1 बाय z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z। हुणे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होएगा कि देखो, अगर z जो है वो a + आयोटा b है तो 1 बाय z की होएगा। इनू देखो आप कढ़ते हैं, थोड़ी बुक में चंगी तरह नहीं कढ़िया होया। देखो आप की करांगे, a + आयोटा b एज इट इज। हुण इनू रैशनलाइज कर लो, इहदा साइन चेंज करो, a - आयोटा b ओवर a - आयोटा b। साइन चेंज करके उन्ना ही मल्टीप्लाई उन्ना ही डिवाइड। हुण नोमरेटर तो एक नाल जो मल्टीप्लाई करांगे तो a - आयोटा b एज इट इज, नीचे बन जाएगा x + y और x - y का फार्मूला। तो क्या आ जाएगा a² और इत्थे आएगा -आयोटा b का स्क्वायर। ठीक है, y पूरा है ना आ चीज़। ठीक है, हुण इनू सॉल्व करो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, a ओवर a² + b² प्लस माइनस आयोटा b ओवर a² + b²। अब प्लस नीचे किमें आया, देखो आ माइनस बाहर सी ना, तो इत्थे आयोटा का स्क्वेयर जो आप करांगे तो आयोटा स्क्वेयर कितना होंदा है, -1। तो माइनस बाहर है, माइनस एक होर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, और b का स्क्वेयर एज इट इज। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आया, तुसीं इनू डायरैक्ट भी याद कर सकते हो कि अगर एक कॉम्प्लैक्स नंबर आपको दिता होया a + आयोटा b, दैन 1 बाय z इज a ओवर a² + b² माइनस आयोटा b ओवर a² + b²। एदा अगर आपां अगर एदा क्वेश्चन भी करना है कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कढो किसी भी कॉम्प्लैक्स नंबर थानू अगर दिता होया है, सपोज थानू दिता होया है 3 + आयोटा 5, तो 1 बाय z कढ़ना है तो डायरैक्ट फार्मूला कर लो। a और b की वैल्यू कितनी है, a है 3, b है कितना 5, मैं ये फार्मूले च भर दो तो कितना आया, a ओवर a² + b², 9 + 25। ठीक है, और माइनस आयोटा b ओवर a² + b², तो कितना आंसर आया। ठीक है, 3 ओवर 34 माइनस आयोटा 5 ओवर 34। सो दिस इज योर 1 ओवर z। बोलो समझ आ गया होना है ना। तो ये सी अपने को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक फीचर एदा होर बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की है, देखो 6th प्रॉपर्टी दी हुई है कि 3 कॉम्प्लैक्स नंबर्स ने वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये जड़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये दोनों फीचर्स नू प्लस और मल्टीप्लाई नू मिला के बनता है। हुण मान लो अपने को 3 कॉम्प्लैक्स नंबर्स ने Z1 Z2 Z3, फस्ट नू दोनों की एडिशन के नाल फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर एवें कर सकते हो पहले 2 कॉम्प्लैक्स नंबर नू ऐड कर दो और तीसरा मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव। Z इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर Z2 एंड Z3। की आ जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। हेयर Z3 इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर Z1 और Z2। ठीक है, आ गया रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हुण देखो डिवीजन किवें करनी हुंदी है 2 कॉम्प्लैक्स नंबर्स की। डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लैक्स नंबर्स, सपोज वी हैव गिवन 2 कॉम्प्लैक्स नंबर्स एंड देयर डिवीजन इज डिनोटेड बाय Z1 ओवर Z2। इनू आप एवें भी कर सकते हैं, Z1 मल्टीप्लाइड विद Z2, यानी कि फस्ट कॉम्प्लैक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन विद द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सेकंड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लैक्स नंबर्स। हुणे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप सीखे है ना,
है ना। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ कि Z1 जो है दैट इज़ 6 + 3 आयोटा और Z2 जो है दैट इज़ 2 - आयोटा, ठीक है। इन्होंने दोनों की डिवीजन मांग रहा है, तो डिवीजन किमें है फिर Z1 / Z2 6 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। तो 6 + 3 आयोटा का आप मल्टीप्लाई करांगे और किहदे नाल करांगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - आयोटा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की होंदा है किसी भी कॉम्पलैक्स नंबर का 1/z। दिस इज इक्वल टू हुणे आपां की सीखिया सीगा, थोड़ा जिहा खुला करके लिखते हैं a/a² + b² + आयोटा माइनस b। तो आ माइनस जिहड़ा हैगा ए तुसी चाहे इत्थे लिख लो चाहे b दे नाल लगा लो, तो याद रह जाएगा a² + b²। आ है किसी कंपलैक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। हुण आ 6 + 3 आयोटा का उवें हुण इहदा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कढ लो। इहदे विच a की है 2, a² + b² की है a² इज़ 2² और b इत्थे है -1, तो उहदा स्केयर करांगे तो +1 आ जाएगा ना, है ना। तो 2 दा स्केयर + 1 स्केयर 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस आयोटा b इत्थे की है -1 और इत्थे माइनस एक होर फार्मूले वाला है, तो कितना आ गया 1 और a² + b² 2 का स्केयर + 1 का स्केयर हो गया 5। तो आ गया 1/z और आ गया 1/z2 और ये आ गया z1। हुण इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। हुण मल्टीप्लाई आप किवें आप सीखी है ना, मल्टीप्लाई पहले इनू उठाओ इन दोनों नाल मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनू चुको इन दोनों नाल मल्टीप्लाई कर दो। सो दैट विल बी योर डिवीजन ऑफ 2 कॉम्पलैक्स नंबरस। हुण सिर्फ मल्टीप्लाई ही करनी है बस, तुसीं कर देने हैं फिर कोई नहीं। तो पहले आप 6 नूं लैने हैं मल्टीप्लाई करते हैं 12/15 इनू इहदे नाल प्लस आयोटा 6/5 12/5 प्लस आयोटा 6/5 प्लस इनू हुण आ सैकेंड टर्म नूं फर्स्ट टर्म नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 6 आयोटा/5, ठीक है। और आयोटा नूं आयोटा नाल मल्टीप्लाई करांगे तो -1 आयोटा स्क्वायर, है ना। और 3 इधर आ जाएगा 3/5 आएगा। हुण आ रियल पार्ट आ गए, इन्हों आपस में लै लो 12 - 3 9/5 प्लस आयोटा कॉमन 6 and 6 12/5। दिस इज द आंसर ऑफ डिवीजन ऑफ 2 कॉम्पलैक्स नंबरस, ठीक। हुण जो नैक्सट टॉपिक है अपने कोल दैट इज द पावर ऑफ आयोटा। और ये बहुत यूज़ होंदियां ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस विच भी यूज़ हो रही ने कि थानू काफ़ी पावर्स आ जाएगियां आयोटा दियां और उन्होंने तुहानू सिंपलीफाई करके आंसर देना होएगा कि आयोटा दी स्क्वायर और बेस किनू मनांगे आयोटा स्क्वायर नू। तो पावर्स लैके चलते हैं। आयोटा स्क्वायर तो अपने को बेस वैल्यू है ही है। आयोटा क्यूब देखो कितना आएगा। हुण कोई आयोटा क्यूब लेना है तो टॉपिक की है अपने को पावर ऑफ आयोटा, पावर्स आयोटा क्यूब इन्हू तुसीं लै लो आयोटा स्केयर इंटू आयोटा और आयोटा स्केयर कितना होंदा है -1। तो -1 इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा। तो की फार्मूला बनया अपने को वैल्यू की बनी आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। याद रखना है डायरैक्ट, अगर याद नहीं है तो केवल एक बस बेस वैल्यू याद रख लो, बाकी सारियां आ जाएंगियां। हुण जिवें मैं कढ़ रहा मैं आप डायरैक्ट सारियां याद रखी हुई ने, बस तुसीं डायरैक्ट इनू आयोटा स्क्वेयर है आयोटा 4 है तो इनू 2 आयोटा स्क्वेयर विच मल्टीप्लाई कर लो, है ना। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो आयोटा 4 ही आ जाएगा ना। हुण आयोटा स्केयर की जगह -1 और दूसरा आयोटा स्केयर की जगह -1 -1 इन -1 +1 आयोटा 5 आयोटा स्केयर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्केयर कितना हो गया, ये हो गया 1 और आयोटा बच गया तो कल्ला आयोटा बच गया फिर, ठीक है। आई तुसी आई लिखोगे ना, आयोटा 6 आयोटा 7 इस तरह जिन्नियां मर्जी तुसी वैल्यूज़ लिख लो। आयोटा 10 लिखना हो तो की करांगे आयोटा स्केयर दी पावर 5 आयोटा स्केयर दी पावर 5 है ना। पावर के उपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो आयोटा स्केयर पावर 5 है। आयोटा स्केयर कितना है -1 ऊपर 5 आ गया
-1 ਪਾਵਰ 5 ਇਜ਼ -1। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਇਓਟਾ -3 ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਆਇਓਟਾ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ डिनोमिनेटर में ले आओ ਉਹਨੂੰ, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है? माइनस आयोटा, तो कितना आ गया? आ गया माइनस आयोटा, 1/- आयोटा। ठीक है, तो 1/- आयोटा नूं हुण रैशनलाइज करो, नीचे ना रहन दो आयोटा नूं, तो की करो? आयोटा उपर मल्टीप्लाई, आयोटा नीचे मल्टीप्लाई, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर नूं आयोटा नाल मल्टीप्लाई कर दो। हुण आयोटा उपर एज इट इज और नीचे क्या आ जाएगा? आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, -1 बाहर है तो कितना आ गया? 1, तो आ गया आयोटा। तो आयोटा -3 कितना आया? दिस इज प्लस आयोटा, और आयोटा +3 कितना सीगा? माइनस आयोटा। ये गल्लां याद रखनियां ने। हुण अगर आयोटा पावर 4 -4 कड्डनी है तो फिर की करांगे? आयोटा पावर -4 लियानी है तो नीचे डिनोमिनेटर विच आ जाएगा आयोटा +4। हुण आयोटा +4 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1/1 इज 1, तो आयोटा +4 भी 1 है और आयोटा -4 भी 1 है। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट अदर वैल्यूज। और अगर आयोटा -1 पावर कटनी हो तो कितनी आएगी? देखो -1 पावर है ना, तो नीचे ले आने आयोटा 1 आयोटा प्लस आ गया, इनू रैशनलाइज कर लो जिवें इत्थे कीता सीगा रैशनलाइज। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइड, ऊपर वाला आयोटा मल्टीप्लाई करके एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर कितना आ गया? -1, तो आयोटा -1 कितना आया? माइनस आयोटा। ये गल्लां याद रखनियां ने। ये तुहानू ना जे तुहानू जिहड़े आउणगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ फटाफट ਜਿਹੜਾ ਹੈ आंसर देखना पएगा, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ याद होनी चाहिए। जिवें आयोटा -1 इज माइनस आयोटा, तो उत्थे तुसीं वैल्यू यूज़ करके आंसर दे सकते। ठीक है, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। हुण स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा तो मैं तुहानू दस चुकिया। तो हुण कुछ अगर मान लो किसी भी अंडर रूट दे विच मान लो आ लिखिया होया -3 लिखिया होया, या -5 लिखिया होया है ना, या -1 है, तो -1 का मतलब तो सिर्फ आयोटा ही है सीधा ही। हुण -5 नूं किवें लिखोगे? फिर -5 नूं तुसीं ऐ लिखोगे 5 × -1 अंडर द रूट। हुण 5 तो अंडर रूट एज इट इज, और -1 की जगह की लगाओगे? आयोटा। तो आयोटा चाहे अगे लगा दो चाहे ऐ लगा दो, आयोटा × 500 दोनों ही ठीक है। ऐसा किवें लिखोगे? आयोटा × 3 अंडर रूट, या 3 अंडर रूट आयोटा। बोलो समझ आ रहा है? सो इस लैक्चर दे विच इन्ना ही। इन माई नैक्सट लैक्चर वी शैल स्टार्ट विद स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर।